Yes, Bache. So water topic, we have done this topic and today we are revising this topic, water. So first have a brief look what we have done in this chapter and what we have to revise now. First, water. From water, we will read about water cycle, revise, then its distribution, then water in ocean circulation. Because most of the water we find in oceans, 97%. So then we will discuss about this ocean circulation. We can write here. Ocean circulation. So ocean circulation, then it is again 3 types: tides, waves, and ocean currents. So these all we have to revise. Okay? So first we will, and you can also make such diagram, mind map. So this is called mind map. So this mind map you can also make in your notebooks. So this can be in 1 page you can revise the whole chapter on your notebooks. Books के ऊपर नहीं बनाना बेटा, because of every chapter we can draw. तो इसके लिए आप क्या करोगे, notebooks यूज करो अपनी, ठीक है. On rough notebook you can now, if you have taken your notes, अगर आपकी notes की notebook है तो आप उस पर भी लिख सकते हो, ठीक है. So first we will discuss about water cycle. ठीक है, सबसे पहले हम water cycle के बारे में discuss करते हैं. So in water cycle we have done that there is a cycle going on. ठीक है, water cycle में we have done कि there is one water cycle. ठीक है, अब water cycle में water evaporates from various water bodies. जो वेरियस वाटर बॉडीज है वहां से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट. वाटर इवेपोरेट होता है फ्रॉम वेरियस वाटर बॉडीज. वाटर बॉडी से क्या हो रही है यहाँ पे, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मीन्स व्हेन वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म्स इनटू वाटर वेपर एंड आफ्टर इवेपोरेशन it get condenses. So then there is condensation take place. That water vapor that has been evaporated from water bodies, so that water vapor becomes, take the form of clouds. In the process of condensation it take the form of clouds. So in the clouds there are droplets of water. So when these droplets of water becomes too heavy to float in the air, then it came down, it fall down on the earth in the form of rain, sleet, snow. So that is called, उसे हम क्या कहते हैं, precipitation. ठीक है. So this is how the water cycle goes on. ठीक है, about this water cycle we have done. So major इसमें से one question, there is water cycle. What is evaporation? When water changes its forms, evaporates from water bodies, the water becomes vapor. ठीक है, then the evaporation takes place. Then when it goes to the height, it rises above, then it gets condensed at the height, and then it changes its form and it takes the form of clouds. So clouds, what are clouds? Clouds are the masses of droplets of water. ठीक है, so after condensation the clouds are floating in the air. So clouds are droplets of water. So when these droplets of water becomes too heavy to float in the air, then they came down in the form of precipitation. So what is precipitation? When this condensed water came down, fall on the land in the form of rain, snow, sleet, so that is called precipitation. Clear? So this water cycle goes on. Then the distribution of water. In distribution of water, we have discussed how water is distributed on our earth. So on our earth, water is distributed. 97% water कहाँ पे है? In oceans. 97% of water is there in oceans. And then 2.7% water is there in the form of ice, glaciers,
आइस या एक ही चीज लिख दो, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, व्हिच वी कांट यूज। तो इस वाटर का तो हम यूज नहीं कर सकते, 2.7% है हमारी अर्थ के ऊपर है, ओशियंस में नहीं है। किस फॉर्म में है? ग्राउंड वाटर है, जिसको या तो हम बोरवेल वगैरह डिग करके निकालेंगे या फिर ग्लेशियर्स में है, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर हमारे लिए कई बार पॉसिबल नहीं है हमेशा यूज करना। और इसके बाद 0.03% हमारे पास बचता है, दैट इज फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर हमें किस में मिलता है? इन रिवर्स, लेक्स, ठीक है, रिवर्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है, क्लियर? सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन आवर अर्थ। सो which water is suitable for drinking? Only this fresh water which is available in rivers or lakes. All this 97% water, this is not suitable for drinking. Why? As it is salty. Why it is salty? Because there is sodium chloride, which salt we use, and there is a lot of salt, okay, large amount of salt in the ocean water. So that is why it is also not suitable for drinking. Clear? Water cycle is clear, and then distribution, ठीक है। So इसमें ये दो चीजें हमारे पास होगी, water cycle and distribution. Now next we have discussed about ocean circulation. So ocean circulation कितनी types की हैं? There are 3 types. And what is mean by circulation? कि ocean water is not still, ठीक है, ocean water still नहीं है, it is continuously moving. तो इसलिए हम कहते हैं कि it is continuously circulating. तो still नहीं है, जैसे lakes, lakes का water still होता है, ponds का water still होता है, so that is it is not still. 3 movements हैं इसकी. First is wave. What do you mean by waves? हाँ जी, वेव का मीनिंग, हाँ जी, यस बेटा, यस। अब हम ओशन की बात करें तो ओशन तो इन तीनों में आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है? राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल किसका है? राइज एंड फॉल किसका हो रहा है? ओशन वाटर का, ठीक है। राइज एंड फॉल ऑन सरफेस। अब सरफेस किसका होगा? वो भी ओशन का होगा, ठीक है। राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन, तो वो क्या होंगी? वेव्स। वेव्स में हमने की थी ह्यूज वेव. ह्यूज वेव इज कॉल्ड सुनामी, लार्ज ह्यूज टाइडल वेव. एंड द रीजन फॉर वेव्स, फर्स्ट इज द विंड. The stronger the wind, the larger will be the wave. जितने wind strong होगी उतनी wave large होगी. और सुनामी के लिए कौन कौन से different causes हैं? Earthquake, volcanic eruptions, and yes, underwater, underground water landslides भी हो सकती हैं. तो different reason है. इसमें हमने एक और क्या किया waves में? एक तो हमने ये किया, ठीक है, एक हमने इसी में किया सुनामी, ठीक है। और साथ ही में जो फैक्टर्स थे, फैक्टर्स किसको अफेक्ट कर रहे थे? वेव्स को, क्लियर? ये 3 चीजें की हमने वेव्स में. इसका मीनिंग सुनामी और जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे वेव्स को. फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर रहे हैं वेव्स को? फैक्टर्स कौन से अफेक्ट कर रहे हैं? विंड, देन विंड, earthquake, then volcanic eruption, ठीक है। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स किसके हो गए? वेव्स के. मीनिंग हो गया, ठीक है। एक ह्यूज टाइडल वेव सुनामी होगी, देन डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्गर द विंड, अब इसमें डिफरेंट स्टॉर्म भी आ सकते हैं, लार्जर विल बी द वेव, ठीक है। सो दीज आर अदर फैक्टर्स. सो देन कम्स द टाइड. Yes, what is tide? हाँ जी बेटा. Yes, so rhythmic rise and fall. अब इसमें भी rise and fall थी, इसमें भी क्या आएगा? Rise and fall, rhythmic rise and fall.
तो राइज एंड फॉल, इसमें भी राइज एंड फॉल आ गया, ठीक है। राइज एंड फॉल किस में हो रहा है? राइज एंड फॉल इसमें हमने लिखा था ऑन द सरफेस, इस ओशन के सरफेस पे हो रहा है। इसमें हम क्या लिखेंगे? इन ओशियन वाटर, कि जो ओशन का वाटर है वही राइज और फॉल हो रहा है, ठीक है। आप क्लैरिटी के लिए लेवल वर्ड भी यूज कर सकते हो, राइज एंड फॉल इन लेवल ऑफ ओशियन वाटर, ये भी लिख सकते हो। देन टाइड्स में हमने और क्या की चीज? टाइड्स में और क्या की? देन टाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। पहले तो हमने की हाई टाइड एंड लो टाइड, ये की हमने हाई टाइड एंड लो टाइड। अब हाई टाइड को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड, और लो टाइड को क्या कहते हैं? नीप टाइड, ठीक है। टाइड क्लियर हुआ? पहले हमने इसका मीनिंग किया, देन हमने there is high tide and there is low tide also. High tide is called spring tide, low tide is called neap tide, ठीक है। And then all these tides, they are caused due to the reason, tides reason क्या है इसका? Gravitational force of sun and moon. Gravitational force है sun और moon का, when the moon is in new moon, or then first is a new moon and second one full moon position, then the tides are highest, ठीक है। And when the moon is in first or last quarter, then the tides are lowest, so that is called neap tide and then is called spring high tide. Clear? तो इसमें हमने टाइड्स और फिर साथ ही में the factors, इसी में आगे हम बता सकते हैं स्प्रिंग टाइड कब होता है, या आप डिफरेंट फैक्टर्स भी बता सकते हो कि इसमें कौन सा फैक्टर काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसका? सन एंड मून, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी? सो नाउ नेक्स्ट कम द ओशियन करंट्स। अब ओशियन करंट्स, ये टाइड्स में हमारा डिस्कस हो गया, वेव्स, टाइड्स, एंड नाउ ओशियन करंट्स। Ocean currents. What are ocean currents? Just first meaning, ठीक है। हम वार्म कोल्ड की बात बाद में करेंगे। जस्ट ओशियन करंट्स, मीनिंग ऑफ ओशियन करंट्स। Yes, ocean currents are streams of water, ठीक है। पहले हम इसका क्या कहेंगे कि ये क्या है? स्ट्रीम्स ऑफ। अब कौन से वाटर की होंगी? ओशन वाटर की ही है, क्योंकि ओशन की बात कर रहे हैं। अब ओशन की है ना, तो ओशन का ही वाटर होगा, कोई और वाटर नहीं होगा। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कहाँ पे फ्लो कर रही हैं? ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस पे फ्लो कर रही हैं। देन डेफिनेट डायरेक्शन में है उनकी, डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। और यस, और एक पॉइंट इसमें 4 किए थे हमने, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ ओशन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन एंड फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है, कि वो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रही हैं, ये नहीं कि एक टाइम पे कर रही हैं और एक टाइम पे नहीं कर रही, ठीक है। ओशन करंट्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर on the surface of ocean, definitely in definite direction and constantly flowing, ठीक है। So now these ocean currents are of 2 types. These ocean currents are of 2 types. First, warm ocean currents, and then second, cold ocean currents. So warm ocean currents, where it originates? Near the equator. So warm currents originate near the equator and move towards, किधर मूव करते हैं? इक्वेटर टू पोल्स, पोल्स की तरफ मूव करते हैं। और कोल्ड करंट्स, where it originates, they originates near poles and moves towards tropical region, क्योंकि इक्वेटर तक तो नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो
हम कह सकते हैं इक्वेटर भी लिख सकते हो, नहीं तो ट्रॉपिकल रीजन भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों में से कोई चीज भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो इक्वेटर पे ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये पोल्स में ओरिजिनेट हो रहे हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि पोल्स तक पहुंचेंगे, लेकिन पोल्स की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है, और इसी तरह ये भी पोल से स्टार्ट होते हैं, जरूरी नहीं इक्वेटर तक पहुंचेंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन इक्वेटर की तरफ होती है, ठीक है। सो दीज आर द वार्म करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स. Warm currents move from equator to poles. Cold currents move from poles to equator. ठीक है? So in this mind map, your whole chapter will come. Points लिखे हमने साथ साथ में. Yes? Any doubt? So this water cycle, the water always changes its position or it circulates between land, atmosphere, ठीक है, then oceans, and मतलब again from oceans to atmosphere, from atmosphere to land, and from land to again oceans, with different water bodies भी लिख सकते हो, ठीक है. So it keeps on changing. So this is called water cycle. Clear? So then distribution, there is so much water in ocean, 97%, but that is not suitable for drinking. Why? Because they contain large amount of salt in it. The water is salty, so that is not suitable for drinking. So which water is available for drinking? This 0.03% only. Okay? So then we have talked about this ocean water, which is 97%. Okay? Ki how this ocean water, what is this ocean water is circulating, it is not still. Okay? So there are waves in oceans, there are tides in oceans, there are ocean currents also. Waves, they are how waves, अब इसमें हमने यूजफुल किए हैं टाइड्स और ओशन करंट्स के. टाइड्स के यूजेस किए हैं सिर्फ हमने, ठीक है. वेव्स का तो हमने एग्जांपल किया था कि व्हेन वी थ्रो बॉल इनटू द ओशन देन इट कम्स बैक टू अस, ठीक है. देन टाइड्स, हाउ टाइड्स आर यूजफुल. अब आप इसमें, ये आपके पेज के ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें टाइड्स के भी यूजेस लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है. अदरवाइज इतने सफिशिएंट है, आपको ये याद हो जाएंगे. टाइड्स के यूजेस हम इधर कर सकते हैं, यूजेस ऑफ टाइड्स, ठीक है. टाइड्स के यूजेस क्या हैं? फर्स्ट, नेविगेशन में हेल्पफुल होती है. देन फर्स्ट, व्हेन शिप्स, सो दे आल्सो हेल्प शिप्स टू अराइव एट द शोर, ठीक है. जो शिप्स है वो भी शोर तक बड़ी इजीली आ जाते हैं. सो व्हेन देयर इज हाई टाइड, so ships can easily reach to the shore. Then how tides are useful? Fishermen. So high tides, when there are high tides, so more fishes come to the shore. So fishermen also got benefit. Then what other benefit? Then it is also, Hanji, generate electricity. Somewhere these tides, they are also used. कई जगह पर इसको क्या यूज होता है? To generate electricity. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज होता है, ठीक है. Any other use? Yes, any other use? Clear? So these are different uses of tides. अब इसमें हमने ओशन करंट्स में एक और किया था कि व्हेन कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट, जहां पे कोल्ड और वार्म करंट्स मिलते हैं, ठीक है, वेयर दे मीट, वहां पे क्या होता है? बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होती है. ये भी हमने किया था इसमें एक पॉइंट. सो देयर इज बेस्ट फिशिंग ग्राउंड. सो नाउ ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड. के कुछ रह गया पॉइंट इसमें? इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हमारे. Anything is left, or if you want to add any point or to ask any? Yes, so
These ocean currents, cold current, warm currents also affect the temperature of the coastal areas. When there are warm currents, the temperature of the neighboring areas is warm, and where there are cold currents are flowing, the temperature of neighboring areas is cold. And where the both meet, then there is foggy weather. ठीक है? So this point, yes, this point you can add. What else point you can add? Or if you want you ask? हाँ जी दृष्टि? Yes बेटा? मैम डू यू नो इसमें ना लिखा है कि कितने ग्राम्स ऑफ वाटर जैसे प्रेजेंट है, तो मैम ये आपके पेपर में। बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज रिपीट। मैम जो डू यू नोज है उधर लिखा है कि 100 ग्राम्स ऑफ वाटर और जैसे 350, तो मैम ऐसे ये आ सकते पेपर में। यस, सो डू यू नो के कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, एक बार हम वो भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें है कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट, कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो कितना प्रेजेंट है ओशियन वाटर में। सो देयर इज 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000, कि 1000 ग्राम में कितने ग्राम जो साल्ट है वो प्रेजेंट है, उससे हम मेजर करते हैं कि ये वाटर कितना सैलिन है। जितने ज्यादा ग्राम साल्ट उसमें प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा वो वाटर सैलिन होगा। अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज हमें मिलती है 35 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, कि पर 1000 में हमें 35 ग्राम जो है वो साल्ट मिलता है। ठीक है, यस, सो एनी फैक्ट कैन आल्सो कम इन एमसीक्यूज। लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आ सकते लेकिन एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, फ्रॉम द डू यू नो एनी फैक्ट। सो नेक्स्ट, जैसे डेड सी इन इजराइल, उसमें कितनी है सैलिनिटी? उसमें है 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। और वहां पर जो स्विमर्स हैं दे कैन फ्लोट वेरी इजीली, क्योंकि उसमें साल्ट कंटेंट होता है और पानी बहुत डेंस होता है, तो इसलिए स्विमर्स फ्लोट कर लेते हैं। उसके बाद वर्ल्ड वाटर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? मार्च 22 को। ठीक है, फॉर कंजर्विंग वाटर, बिकॉज वाटर वी आर डिस्ट्रॉइंग वाटर इन मेनी वेज, है ना, वो देख हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट, द वेव्स। अब वेव्स कब फॉर्म कितनी होती हैं? एक रीजन तो हमने किया ही था, विंड्स, है ना। तो वेव्स आर फॉर्म व्हेन winds scrape across the ocean surface. Stronger the wind, bigger will be the wave. So this is also one of the point. So then tsunami is word of which language? Japanese word. So which means harbor waves. ठीक है, and as the harbors get destroyed when there is tsunami, तो जब भी सुनामी की वेव आती है तो जो हार्बर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, so these are any other doubt beta? Yes, any other doubt from this topic? ठीक है, so अब आपको अपने माइंड में पूरा टॉपिक इस तरह से रखना है कि दिस इज आवर फुल टॉपिक एंड वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई पॉइंट लगता है जो टॉपिक में से हमने नहीं किया, इस तरह के माइंड मैप आप खुद भी बना सकते हो। व्हेन यू आर रिवाइजिंग द टॉपिक तो अपने माइंड मैप बनाओ, उसमें आपके सारे पॉइंट्स एक ही पेज पे कवर होने चाहिए। ठीक है, कोशिश करो कि ये सारे, अगर इसमें मैंने कोई पॉइंट नहीं भी लिखा है सो यू कैन अकॉर्डिंगली, क्योंकि कोशिश की है कि हमने मेन पॉइंट्स लिखे हैं। बाकी इसके साथ ही जैसे वार्म कोल्ड करंट के साथ टेम्परेचर इसके साथ आ गया। ठीक है, सो दिस यू कैन। सो एनी अदर डाउट? क्लियर? ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स तो इसके साथ ही सारे हमारे हो गए। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज वाटर साइकिल, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइट्स ऑफ वेव्स, ठीक है, देन ओशन करंट्स क्या है, टाइड्स क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर causing tides, why ocean water is salty, so all the questions that has been revised side by side. Clear? Okay bache, so you will revise this topic and we will next we can revise the next topic tomorrow.